رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری عبادات فرض کی ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدق و خیرات ہے. لیکن ان تمام عبادات کی روح اور اس کا جو سول ہے، جانتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ اس آیت کریمہ میں اسی عبادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وہ عبادت دعا ہے. اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا تمہارا رب یہ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. عبادت سے تکبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تکبر مانے بڑا بننا، یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انہ غنی عن اللہ، وہ اللہ سے بے نیاز ہے، اسے اللہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے بڑا بننا. کوئی یہ کہتے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، لست محتاجن الیہ، میں اس کا محتاج نہیں، یہ بڑا بننا ہے. تو بڑا کون بنتا ہے؟ جو اللہ کا محتاج اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا. بالفاظ دیگر وہ آدمی جو دعا نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، وہ اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اور اپنے حال سے بلسان الحال یا بلسان المقال یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے. انہ غنی عن اللہ، اللہ سے بے نیاز ہے. وَلَسْتُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں. یہ بتانا چاہ رہا ہے. جو دعا نہیں مانگتا وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، بڑا بنتا ہے. اللہ فرما رہا ہے اس کو جو بڑا بن رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تو سیدخلون جہنم داخرین، اسے چھوٹا بنا کر جہنم میں داخل کریں گے. بڑا بن رہا تھا نا، تو بڑے کو چھوٹا کر دیا گیا ہے، ذلیل کر دیا گیا ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر کے، چھوٹے بنا کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. گویا دعا نہ مانگنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. بات یہ معلوم ہوئی. اور یہاں کہا گیا کہ مجھ سے دعا کرو، پھر کہا جا رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے. اس کا مطلب دعا عین عبادت ہے. اور اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یہ دیکھیں آپ، دعا ہی عبادت ہے. اگر آدمی اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو سمجھو عبادت ہی نہیں کرتا ہے. ایک بہت پیارا واقعہ آپ کے سامنے اور ہماری ماؤں بہنوں کے سامنے، بالکل سانس روک کر سنیے ایک دم. فرعون کی بیوی ہیں آسیہ بنت مزاحم، محلوں میں رہنے والی رانی.
बहुत पावरफुल लेडी, जानते हैं जब ये ईमान लाइन तो फिरौन इनसे बहुत ज्यादा नाराज हुआ और कहा कि अपने ईमान को तर्क कर दे वरना बहुत बुरी सजा दूंगा। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सजा इस तरह दी उसने, औरत वैसे भी नाजुक होती है, उनको धूप में लिटा करके उनके हाथों में कील ठोंक दी गई और पैरों में कील ठोंक दी गई। जानते हैं उस वक्त उन्होंने क्या कहा? अल्लाह ने सूरह तहरीम के आखिर में उनकी वो बात जो अल्लाह से हुई है वो बात नकल फरमाई है। खुद रब ने फरमाया, इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नति वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। दुआ कर रही हूँ, इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक, दुआ दे। खामोश होकर एकदम बैठिए, एकदम हिलिए भी नहीं, दुआ की तशरीह कर रहा हूं। रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन, मेरे रब तू मेरे लिए अपने पास एक घर बना। ये देखिए दुआ है। तो यहां किसी इबादत का अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। देखिए वो नमाज भी पढ़ती होंगी, रोज़ा भी रखती हैं, सदक़ो खैरात भी करती हैं, तमाम इबादतों को अंजाम देती थीं, लेकिन पूरे बयान में आप देख लीजिए उनकी किसी इबादत का जिक्र नहीं है सिवाय दुआ के। जी, ये दुआ खाली है। नमाज का जिक्र नहीं किया गया, सदक़े का जिक्र नहीं किया गया, रोजे का जिक्र नहीं किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस लेडी की सिर्फ एक इबादत को जिक्र किया है, वो दुआ है। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन, ऐ मेरे रब तू बना मेरे लिए एक घर। तू बना बोले तो ये नहीं कह रही है कि बनवा दे, तू बना दे। उनको मालूम है कि दुनिया में कोई बिल्डर और कोई भी बनाने वाला इंजीनियर कोई घर बनाता है तो कोई ना कोई इल्लत और कोई ना कोई कमी रहती है। इंजीनियर में खुद कमी है, इंसान में खुद कमी है, तो वो जो चीज बनाएगा उसके अंदर कमी रहेगी। नाकिस से नाकिस ही चीज वजूद में आती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि अल्लाह कामिल है, लिहाजा उसकी हर चीज कामिल होती है, उसकी हर तख्लीक कामिल है। इसलिए कि वो कामिल है तो उसकी हर चीज कामिल है, और इंसान नाकिस है, लिहाजा वो जो कुछ भी करता है नाकिस है। अब बोलूं, हमारी जितनी भी इबादतें होती हैं नाकिस हैं, वो हमारे रोजे नाकिस हैं। तभी तो कहा जा रहा है कि हर आदमी सदक़तुल फित्र दे। क्यों भाई? वो जो भीख मांगता है उसको भी सदक़तुल फित्र निकालना है। सदक़तुल फित्र का मतलब यह है कि तेरे रोजों के अंदर जो कमी थी, इस सदक़तुल फित्र से अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरी कर देगा। देखो रोजे रखे उसने, लेकिन इस इबादत में नक्स है। आलिम से भी कहा जा रहा है सदक़तुल फित्र निकाल, जाहिल से भी कहा जा रहा है कि सदक़तुल फित्र निकाल, बच्चा पैदा हुआ है उस दिन उसके बारे में भी कहा जा रहा है इसकी तरफ से भी निकाल दे, नौकर है उसकी तरफ से भी निकाल दे, फकीर से भी कहा जा रहा है कि तू भी निकाल दे। आलिम, जाहिल, आबिद, जाहिद, मुतहज्जिद, सबसे कहा जा रहा है कि तू सदक़तुल फित्र निकाल। क्यों? इसलिए कि तेरी इस इबादत के अंदर कमी है। कितनी भी अच्छी तरीके से तू रोजा रख, कमी है। उस मेयार का रोजा नहीं है तेरा जो मेयार मेरे नजदीक मतलूब है। लिहाजा इस कमी को तू सदक़तुल फित्र से दूर कर दे और सदक़तुल फित्र निकाल। और तेरा सदक़तुल फित्र भी मैं देख रहा हूं कि कैसे निकाल रहा है तू और कहां से लिया है। चल इसको भी कबूल कर लेते हैं। और जिंदगी आदमी की महदूद है। अब देखो, अब
अगर इसे लामहदूद जिंदगी दे दी जाए तो क्या ये लामहदूद जिंदगी उसकी जिंदगी की इबादतों का बदल है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आदमी की जिंदगी लिमिटेड है और जन्नत की जो नेमतें हैं वो अनलिमिटेड है। वहां की जिंदगी अनलिमिटेड है, वहां कभी बुढ़ापा नहीं है, वहां कभी मौत नहीं है। तो एक लिमिटेड चीज के बदले में एक अनलिमिटेड चीज दी जा रही है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ही का करम है ना, वरना लिमिटेड चीज अनलिमिटेड का बदल नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये, हम जो कुछ इबादत के नाम पर करते हैं, चूंकि हम नाकिस हैं, लिहाजा हमारी हर अदा नाकिस है, कमी है उसके अंदर। तो इंजीनियर भी नाकिस ही है, लिहाजा बिल्डिंग बनाता है नाकिस। ये कह रही हैं रब्ब इब्निली, तू बना मेरे लिए क्या? बैतन, एक घर। रब्ब इब्निली इंदक बैतन फिल जन्नह, ये घर कहां बनाना है? ये दुनिया के किसी प्लॉट पर नहीं बनाना है, जन्नत में चाहिए। जगह बताई गई कि कहां ये घर चाहिए, दुनिया में नहीं, जन्नत में चाहिए। और कहां चाहिए? तेरे पास चाहिए। इंदक, पहले इंदका कहा, रब्ब इब्निली इंदक बैतन, पहले कहा तेरे पास चाहिए, और फिर घर कहा, और उसके बाद फिर जन्नत कहा। इंदक पहले का, इंदक। इसमें मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता बयान किया है कि अलजार कबलदार, घर से पहले पड़ोसी देखो। तो इंदका तेरे पास, पड़ोस, बैतन घर का तस्करा बाद में है। यानी एक बूढ़े हजरत थे, वो कह रहे थे मैं अपना मकान बेच रहा हूं। एक साहब आए, कितने में बेच रहे हैं? बोले 3 लाख में मकान का वैल्यूएशन है, मगर लेंगे 3.5 लाख। बूढ़ा पागल है। दूसरा आता है, सुना है हजरत आप अपना घर बेच रहे हैं? बोले हाँ घर बेच रहा हूं। कितने का है? बोले 3 लाख का, मगर लूंगा 3.5 लाख। दिमाग खराब। एक बहुत होशियार आदमी होता है, वो आता है, कहता है हजरत सुना है आप अपना घर बेच रहे हैं? बोले हाँ बेच रहा हूँ। कहा कि कितने में बेच रहे हैं? बोले घर का वैल्यूएशन तो 3 लाख है, मगर लूंगा 3.5 लाख। कहा कि डन, ये रहा 3.5 लाख। लेकिन ये बताइए कि आप घर का वैल्यूएशन 3 लाख है, मगर आप 3.5 लाख क्यों ले रहे हैं? बोले हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है, 50,000 उसके लिए ले रहा हूं मैं। जी। तो अलजार कबलदार, तो घर से पहले पड़ोसी देखो, इसलिए कि पड़ोसी कभी कभी आदमी की सोसाइटी के लिए, मुज्तमा के लिए और खुद इंसान के दीन के लिए मुजीर साबित होते, तबाहकुन होते हैं। हाँ, बास पड़ोसियों की वजह से आदमी का दीन मुतासिर हो जाता है। जी बोलूं, मुमकिन है आज ताकरात में लैलतुल कद्र हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 ताकरातें तलाश करने के लिए कहा, लेकिन आपको बता दिया गया था कि एग्जैक्ट कौन सी रात है, यह बता दिया गया था आपको, और आप वही बताने के लिए निकले थे। जिब्राइल के जरिए आपको बता दिया गया कि एग्जैक्ट 5 ताकरातों में से ये आखिरी अशरे में जो 5 ताकरातें हैं, इनमें कौन सी रात में एग्जैक्ट लैलतुल कद्र है, वो लैलतुल कद्र वो बताने के लिए निकले थे। देखा कि 2 मुसलमान झगड़ा कर रहे हैं, बस आपके जहन से लैलतुल कद्र की तायीन उठा ली गई। अब आप परेशान हैं, क्या बोलूं मैं, कौन सी रात बोलूं मैं? आपके जहन से लैलतुल कद्र की तायीन निकाल दी गई। अब देखिए, एक रात जाग लेते थे, बड़ी आसानी थी, लेकिन 2 आदमियों के झगड़े की वजह से उसका असर दीन के ऊपर पड़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से लैलतुल कद्र की तायीन निकाल दी गई। देख रहे हैं आप? तो पड़ोसी अगर खराब है, नेक नहीं है, तो फिर आपके दीन के लिए मुज़िर साबित हो सकते हैं। आपने सूरह कहफ की तफसीर सुनी होगी। सूरह कहफ में है कि हजरत खजिर ने एक बच्चे की गर्दन मरोड़ दी थी, मार दिया था उसको। जानते हैं क्यों? उसकी वजह हजरत खजिर ने बताई कि इसके माँ बाप मोमिन है, फकाना अबवाहु मुमिनैनी, इसके माँ बाप मोमिन है, फखशीना अन युरहिकहुमा तुग़यानन व कुफ्रा, कहीं ऐसा न हो, डर है कि ये अपने माँ बाप के ईमान और अमल के लिए खतरा न बन जाए। देखिए बेटा, ये सबसे बड़ा पड़ोसी होता है जी,
تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ اگر خطرہ بن جائے ایمان کے لیے تو حضرت خضر نے کہا کہ ایمان کے لیے بچے کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن ایمان نہیں. جی یہ اتنی قیمتی شے ہے ایمان جو ہمیں فری میں مل گئی ہے. اب دعا کر رہی ہوں